پروگرام کا نام ہے اعتکاف کی رونق اور الحمدللہ ایپیسوڈ ہمارا ہے 5۔ الحمدللہ معتکفین نے یہاں پر بھرپور انداز سے ہم نے دیکھا کہ تراویح کی نماز ادا کی گئی۔ عاشقان رسول جو ہیں وہ پابندی کے ساتھ یہاں تراویح پڑھتے ہیں۔ آئیے آپ کو تراویح کے مناظر دکھاتے ہیں۔ ماہ رمضان، ماہ رمضان، رب کے مہمان، رب کے مہمان، تجھ سے بخشش کا ہے سامان۔ ماہ رمضان، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا۔ تراویح کے بعد امیر اہل سنت نے معتکفین کے درمیان مدنی مذاکرہ فرمایا، سوالات کے جواب دیے۔ آئیے اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، کیا مالداروں اور ان کی اولاد کو نظر نہیں لگتی؟ نظر کا لگنا حق ہے، صحیح حدیث پاک میں۔ تو لگ تو غریب کو بھی لگ سکتی ہے، مالدار کو بھی لگ سکتی ہے، اور کس کی لگے یہ بھی ضروری نہیں۔ اپنے ماں باپ کی خود اپنی اولاد کو لگ سکتی ہے نظر، اپنے مال پر خود مال کے مالک کی نظر لگ سکتی ہے۔ تو جو بھی چیز پسند آئے نا تو اس کو ماشاء اللہ کہنا چاہیے، ماشاء اللہ، یا کہیں بارک اللہ، تو اس طرح نظر نہیں لگے گی۔ اب ماشاء اللہ بھی صحیح بولنا نہیں آتا نا، مشکل یہ ہے۔ ماشاء اللہ یہ کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ، یا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ نہیں ہے نا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ صحیح تلفظ تو یہ ہے نا۔ انشاء اللہ، انشاء اللہ یہی بولے، انشاء اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واٹ از سبحان اللہ؟ سبحان اللہ درست جو ادا کریں گے تو ہی وہ اس کا جو بھی ہمیں ثمر ملے گا، پھل ملے گا، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، فوائد مرتب ہوں گے۔ تو غلط سلط پڑھنے کا بھی، جلد بازی میں درود پاک بھی نہیں پڑھ پاتے بیچارے۔ اللہ قرآن پڑھے ہوئے ہوتے اپنے ذوم میں، اپنے خیال میں، لیکن پڑھ نہیں رہے اسے۔ بسم اللہ بھی صحیح نہیں پڑھتے، اعوذ بھی صحیح نہیں پڑھتے، بہت جلدی میں کیا کا کیا پڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ سب کوشش کر کے اس کو درست کرنا چاہیے، اور صحیح پڑھنے کی عادت بنانی یہ بھی ضروری ہے۔ کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھتے، جس طرح یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ توبہ مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح کام پڑھتے ہیں۔ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، لیکن میں سمجھانے کی جس طرح تعداد ہے جو غلط پڑھ رہی ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم نے یہ نعرہ کئی مرتبہ سنا ہے کہ ہیروں میں ہیرا، نگران شورا۔ الحمدللہ عز و جل نماز فجر کے بعد نگران شورا کا سنت و بڑا جوشیلا بیان عاشقان رسول میں ہوا۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں نگران شورا کی طرف، اور ان کے بیان کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتے، نعمتیں ملتی ہیں تب بھی ناشکری کرتے ہیں، نتیجہ وہ نعمت ہی چلی جاتی ہے۔ یعنی میں آپ کو حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد سناؤں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہ اسی کو، یعنی اسی نعمت کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے۔ شکر ادا کرو یار۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اس کے 2 ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں یہ تیرا کیپیٹل ہے، محنت کرنا، یہ پاؤں ہے، یہ تیرا انویسٹمنٹ ہے، محنت کرنا۔ یہ آنکھیں اللہ نے دی ہے، دیکھنے کی نعمت دی ہے، یہ تیرا کیپیٹل ہے، محنت کرنا۔ اس سے بھی آپ سے محنت نہیں ہوتی۔ آؤ میں دکھاؤں جن کے 2 ہاتھ نہیں ہے وہ کیسے کام کر رہے ہیں، جن کے 2 ٹانگیں نہیں ہے وہ کیسے کام کر رہے ہیں، جن کی 2 آنکھیں نہیں ہیں، جن کی آنکھوں کا نور نہیں ہے وہ کیسے کام کر رہے ہیں۔ تمہیں کام نہیں کرنا، تمہیں صرف کمپلین فیس میں رہنا، بس شکوہ شکایت۔ نہیں آپ کو نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا بھائی، ہمیں نہیں بتاؤ، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سنو، خدا کے شکر گزار بندے بنو۔
यूके से इस्लामी भाई आए हुए हैं, आइए इनसे पूछते हैं एतकाफ़ कैसा लग रहा है। Alhamdulillah Azawajal, Itikaf is very good. I'm here for 20 days. I was going to stay for full 30 days, but Alhamdulillah, there's lots of to learn here. You study circles, you do tahajjud, and then you pray other nawafils as well. So there's lots of to learn. Than any other Itikaf, normally you sit behind a curtain, but over here there's study circles. So you're learning lots of sunnahs, du'as. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Since I have seen Amir al-Sunnat's blessed face on the screen about 4 years ago when I joined Dawat Islami, I always wanted to come here to the Alamin Markaz, Alhamdulillah, and see his blessed Nuri face in live person. Alhamdulillah Rabbil Alameen, it's been amazing. We've been blessed with many, many blessings, a lot of knowledge, Alhamdulillah. We, Alhamdulillah, are spending time with our Asatizah Ikram and our Amir Kafilas and being on Barama, Alhamdulillah. We're learning many, many things. This is just a little bit that Dawat Islami is giving towards us, Alhamdulillah. So inshallah, Azawajal, if possible, come down yourselves. ये बताएं कि ये कितने लोग आए हुए यूके के यहाँ? तकरीबन 16 इस्लामी भाई हैं, इसके अलावा तकरीबन 7 इस्लामी भाई 12 माह के काफिले वाले भी हैं कम बेश। यूके में हो रहा है एतकाफ़ 1 माह का? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फज़ान मदीना स्ट्रेचफोर्ड में भी 30 दिन का इतिकाफ़ हो रहा है दावत इस्लामी के मरकज़ में 1 माह का, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल। और इसके अलावा 10 दिन का इतिकाफ़ भी तकरीबन 26 मकामात पे होगा यूके में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने कि यूके में भी 10 दिन के इतिकाफ़ हो रहे हैं, महीने का इतिकाफ़ हो रहा है। अभी यूके के आशिकाने रसूल ने हमें कमेंट्स दिए हैं कि फैज़ान मदीना में क्या मिल रहा है। मैं इटली से हूँ, मेरा नाम अब्दुल बासित है। क्यों आए हो बेटा यहाँ? हमें वो जो सुकून होता है ना एक अल्लाह ताला के कामों में, प्यारे मुर्शिद के कदमों में हमारे बैठने की जो सआदत है, वो यहाँ के अलावा कहीं नहीं मिल सकती। वो जो मदनी चैनल पे भी देख लेते हैं भाई। मदनी चैनल पर तो आप हर चीज़ को देख सकते हैं, मगर वो जो आपको दिल का कनेक्शन होता है ना, जब आप यहाँ आकर आप बैठते हैं, वो बहुत अलग है। और आपको दिल का जो लगाव होता है, बहुत मज़ा आता है। आगे की क्या नियत है आपकी? इंशाल्लाह मेरी नियत है कि मैं इतकाफ़ के सकते इंशाल्लाह हिफ्ज़ करूँगा, इंशाल्लाह जी, की भी नियत करो ना, इंशाल्लाह। तो देखें आप, ये इनके नाना हैं, ये उम्मान से हैं, ये इनके नवासे हैं, ये इटली से हैं। इतनी सी उम्र में बड़े ज़बरदस्त इन्होंने तासुरात दिए हैं। अल्लाह इनको बाअमल मुफ्ती बनाए दावत इस्लामी का। आइए इनसे पूछते हैं क्या फीलिंग है, क्या इनको बरकतें मिल रही हैं। जी सबसे पहले तो ये बहुत यहाँ पर आके बहुत कुछ सीखने को मिला। पहली दफ़ा यहाँ पे आलमी मदनी मरकज़ में कैसा मिल रहा है? यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो पीर साहब का फैज़ान है वो तो हर वक्त जारी रहता है। और यहाँ पे जब इफ्तारी का सिलसिला था तो यहाँ पे नई नई चीज़ें जो है वो सीखने को मिली। और बैठने का अंदाज़ और खाने का अंदाज़ जो था वो इतना ही खूबसूरत था कि पीर साहब ने जो हमारी तबीयत फरमाई है उस तरबियत के मुताबिक बहुत मज़ा आ रहा है और पुरसकून माहौल है। और मतलब बंदे को फील ही नहीं होता जैसे मैं मुसाफिर। इतना कल थोड़ी बहुत मुश्किल हुई थी, लेकिन बाद में मामला सेट होकर अपने घर जैसा माहौल बनाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाँ ठर गया, मैं कहता हूँ क्या नूर है, क्या उनके क्या जलवे हैं, क्या जलवे हैं। मैं क्या उनको दीदार किया, उनको देखा है, सुभान अल्लाह, रूह ठर गया है, आशिक, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सर। सराइकी जितने भी है ना पाकिस्तान दुनिया में, तो सराइकी में कोई पैगाम दे दो। इस वक्त जिंदा वली है इस पूरे पाकिस्तान में। हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक जिंदा वली दे दिया है। हम इस टाइम जो है ना हमारे मुल्तान में वलियों के ये उधर बड़े बहुत वली हैं। बारह जो है ना अपने अमीर अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, जिंदा वली है। इंशाल्लाह पूरी जिंदगी दावत इस्लामी के नाम, सुभान अल्लाह। कैसा लग रहा है इतिकाफ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतिकाफ की फीलिंग तो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। और मैं रास्ते में अपने इस्लामियों को कह रहा था कि जिनको ये रमज़ान मिला है ना वो खुश नसीब हैं, और जिनको इस दफ़ा अमीर अहले सुन्नत की सोबत मिल रही है वो उससे डबल खुश नसीब हैं कि ये लम्हात बार बार नहीं आते। अमीर अहले सुन्नत का कुर्ब मिलना, हम जब आने लगे तो कई आंखें रो रही थी, तड़प रहे थे, आना चाहते थे, लेकिन जाहिर है कि असबाब मामलात। तो जो आए हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आप बरकतें लूटने वली कामिल की सोबत से, और जो नहीं आ सके उनको भी बताएं कि आप इनकी कहने पर, इनके हुक्म पर, इनके बताए हुए तरीके पे अमल करें। इंशाल्लाह दुनिया में भी फ़ायदा होगा, आखिरत में भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह यहाँ का माहौल देखा है तो बहुत खुशी हुई है। यहाँ के माशाल्लाह साथ आलिम और जो कोर्स चल रहे हैं
वो देखा, आवाम को देखा, जो जज्बा क्या मिल रहा है आपको? मुझे जोश जज्बा ये मिल रहा है कि मैं अपने मौलाना साहब को मिला है, उनकी रूहानियत देखी, उनकी, जी उनको करीब से देखा? करीब से देखा है और मुझे बहुत खुशी हुई है। नूर है, नूर, बहुत नूर है, बहुत नूर है, बहुत नूर है। बयान हाजी साहब करते हैं। हाजी साहब का नाम भी है कोई, क्या नाम है इनका? हाजी इमरान तार साहब, इमरान अत्तारी। जो बयान फजर की बात करते हैं ना, वाकई शेर बापा के। सिर्फ इधर का दीदार करना था, वो किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ मजालिस बनी हुई है फैज़ान मदीना में, जो पूरे सिस्टम को, पूरे निज़ाम को ये लोग चला रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और ये पहला डिपार्टमेंट हम यहाँ देख रहे हैं। क्या नाम है इसका भाई? दारुस्सुन्ना मदनी काफ़िला शोबा, उसका ज़ेली शोबा दारुस्सुन्ना। इन्होंने यहाँ पर जो है वो लिख कर लगा दिया है रमज़ान एतिकाफ़, और एतिकाफ़ की खुसूसियात क्या हैं वो यहाँ पर है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का तरीका ये सिखा रहे हैं, अस्कार नमाज है, गुस्ल के मसाइल, वज़ू के मसाइल, गुस्ल मैयत का तरीका, दुआ इफ्तार, मदनी मुज़ाकरा और दुरुस्त मखारिज के साथ कुरान पाक। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एतिकाफ़ वालों को जो सिखाया जा रहा है उसका एक पूरा बोर्ड लगा हुआ है। तो ये दारुस्सुन्ना है, इसका क्या मकसद है? दारुस्सुन्ना पे मदनी काफ़िले के लिए जो इस्लामी भाई आते हैं उनकी एंट्री की जाती है, फिर 3 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, 1 माह के लिए और 12 माह के लिए उनकी एंट्री करके मदनी काफ़िले में रवाना किया जाता है। तो ये एतिकाफ़ में आते ही काफ़िले में चले जाएंगे सारे? एतिकाफ़ में जो है उनको यहाँ पर एतिकाफ़ करवाएंगे। अगर वो 30 दिन के लिए आए उनकी डेटा एंट्री करवा के कार्ड बनवाएंगे, और अगर 3 दिन के लिए, 12 दिन के लिए आए उनकी यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद यहाँ पर उनका जदवल चलेगा, उसके बाद चांद रात में इंशाल्लाह मदनी काफ़िले में। आम दिनों में भी जो लोग आ रहे हैं पंजाब से, तो वो कोई 3 दिन भी यहाँ रुक सकता है, 12 दिन भी? जी ज़रूर, वो रुक सकते हैं 3 दिन के लिए भी, 12 दिन के लिए भी, 10 दिन के लिए, जितने दिन आना चाहे वो यहाँ पर आके एंट्री करवा ले और रुक सकते हैं। तो माशाल्लाह प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कितना ज़बरदस्त निज़ाम है कि कोई अगर महीने का एतिकाफ़ है, 3 दिन के लिए भी कोई आना चाहे, 12 दिन के लिए भी कोई आना चाहे, तो वो इस एतिकाफ़ में आएँ और आकर जो है वो फ़र्द उलूम को, वाजिब उलूम को सीखें। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने एतिकाफ़ के अंदर रूहानी इलाज भी हो रहा है, और रूहानी इलाज में देखें माशाल्लाह से इन्होंने हर तरह के मसाइल का मुफ्त इलाज हल पाने के लिए तशरीफ़ लाएँ। तो मुफ्त इलाज हो रहा है, इस्तिखारा, मुसीबतों से छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये बताएं यहाँ रोज़ाना कितने लोगों को आप तावीज़ात दे रहे हैं? यहाँ रूहानी इलाज हो रहा है 600-650 अफराद। 650 लोग कमोबेश जो हैं मुख्तलिफ़ शहरों से भी आते होंगे यहाँ से भी आए। आप बताइए कि यहाँ पर कौन कौन सा इलाज होता है रूहानी? यहाँ पे रूहानी इलाज, रोज़ी के मामला अगर डिस्टर्ब हैं तो आप रूहानी इलाज करवा लें। रोज़ी के मामला, अच्छा। अगर कारोबारी मसाइल होते हैं, जैसे घर के मामला डिस्टर्ब हैं, नाचाकी वगैरह के मामला हैं, ना इत्तिफाकी के मामला हैं, या और भी दीगर जो जुमला अमराज होते हैं, जादू होते हैं, जिन्नात होते हैं, इस तरह के अगर किसी के मामला डिस्टर्ब हैं तो यहाँ फ़ी सबीलिल्लाह इलाज किया जाता है। यहाँ जैसे अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, किसी का मैदा डिस्टर्ब है, किसी को बुखार हो जाता है, इसी तरह किसी के गुर्दे में तकलीफ़ हो जाती है, तो क्या आप लोग इसका भी कोई रूहानी इलाज करते हैं? जी, डायलिसिस के पेशेंट भी आते हैं यहाँ पे और उनका भी रूहानी फ़ी सबीलिल्लाह किया जाता है। इनका तावीज़ होता है बाकायदा, एक अलग गुर्दे पे बांधने के लिए भी होता है, मैदे पे बांधने का भी होता है, इनकी प्लेटें वगैरह भी होती हैं। तो देखा आपने कि कोई चार्जेस नहीं है, सब फ़ी सबीलिल्लाह यहाँ पर तावीज़ात, रूहानी इलाज का सिस्टम है। मज़ीद हम आगे चलते हैं और कार्ड बन रहे हैं, जो उसका सिस्टम है, निज़ाम है, उसको हम देखते हैं इंशाल्लाह। हर तरफ यहाँ पर रौनकें लगी हुई हैं और प्रोग्राम का नाम ही है रौनक एतिकाफ़। एतिकाफ़ की रौनक कौन है? यही आशिकान रसूल जो एतिकाफ़ के लिए आए हुए हैं। ये एतिकाफ़ की रौनक है, ये एतिकाफ़ की बहार है। हमारा ये एतिकाफ़ हेल्प डेस्क है। यहाँ पर इस्लामी भाई मोतकिफ़ीन आने वाले इस्लामी भाइयों की तस्दीक़ात, ऑनलाइन एंट्री वगैरह करना, इनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, ये पूरा सिलसिला होता है। लेकिन ये बोर्ड जो लगा हुआ है ये क्या है? ये सारे जो आपने कोर्सेज़ के नाम रखे, दावत इस्लामी का एक शोबा है, शोबा मदनी कोर्सेज़, जिसके तहत हमारे
रिहायशी कोर्सेज़ होते हैं। फैज़ान नमाज कोर्स हमारा 7 दिन का रिहायशी होता है। 63 दिन का मदनी तरबियती कोर्स है। ये मदनी तरबियती कोर्स ऐसा किरदार साज कोर्स है कि जो इस्लाम भी आता है उसकी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाता है, वो नमाजी बन जाता है। अल्लाह की रहमत से दाढ़ी शरीफ रखने की सादत मिल जाती है, उसे इमामा शरीफ बांधने की सादत मिलती है, तो उसकी लाइफ स्टाइल तब्दील हो जाती है। इसी के साथ हमारा इस्लाह आमाल कोर्स है 7 दिन का, ये भी हमारा रिहायशी होता है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह झूठ, गीबत, चुगली, ये हलाकत में डालने वाली जो बीमारियां हैं, जो मर्ज़ है, इन चीज़ों की आगाही दी जाती है, इसका बताया जाता है। एक बहुत बड़ी तादाद है जिन्हें गीबत के बारे में पता ही नहीं होता, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स के अंदर इन तमाम चीज़ों की तफसीली अहकाम सिखाए जाते हैं ताकि इस्लामी भाई गीबत से बचे, हसद से बचे, गुस्से से बचे। ये तो अभी एतकाफ़ में बैठे हुए हैं, तो क्या ये एतकाफ़ के बाद ही इनके कोर्सेज होंगे या अभी शुरू हो चुके हैं इनके ये कोर्सेज? ये हमारा अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान 1 माह एतकाफ़ का सिलसिला जारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह चांद रात से ही एक बहुत बड़ी तादाद, जिस तरह मदनी काफ़िलों में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में सफ़र करेंगे और फिर कोर्स के लिए तशरीफ़ लाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद के पहले दिन से ही इनके कोर्सेज़ का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसमें 63 दिन का मदनी तरबियती कोर्स का भी आगाज़ होगा, 7 दिन का फैज़ान नमाज कोर्स का भी आगाज़। ये कोर्सेज जो हैं ये सिर्फ यहाँ कराची में ही हो रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से ये सिर्फ कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में ही हमारे कोर्सेज़ होते हैं। पाकिस्तान के हमारे हर शहर के अंदर ये कोर्सेज़ का सिलसिला होता है। इसी के साथ साथ हिंद, बांग्लादेश, श्रीलंका और मुख्तलिफ़ ममालिकों में, साउथ कोरिया, हांगकॉन्ग, दीगर ममालिक में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कोर्सेज़ का सिलसिला रहता है। यहाँ पे जो कोर्सेज होते हैं पाकिस्तान भर के लोग कोर्सेज करते हैं, ये इंटरनेशनल मरकज़ है, तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त तादाद है वो 27 नंबर दिया हुआ हैगा कोर्स का, और यहाँ से शुरू हो रहा हैगा। फैज़ान नमाज कोर्स है, तो 12 दीनी काम कोर्स, तो इस्लाह अमाल है, फैज़ान इस्लाम कोर्स, ये उनके लिए है जो नए नए इस्लाम कबूल कर रहे हैं, उनके लिए ये कोर्स हो रहा है। मौल्लिम कोर्स करवाया जा रहा है जो मुबल्लिगीन होते हैं। मदनी मकसद कोर्स ये उनके लिए होता है जो बैरून मुल्क हमारे मुबल्लिगीन सफ़र करते हैं, कोई चाइना जा रहा है, कोई हांगकॉन्ग जा रहा है, कोई यूके जा रहा है, तो उनको ये 12 दिन का कोर्स करवाया जाता है। इसी तरह 30 दिन का फैज़ान कुरान व हदीस कोर्स ये यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, कॉलेज के नौजवानों के लिए हैं। तरबियती कोर्स सब मुसलमानों के लिए हैं। तहारत कोर्स है। तो ये देखें माशाल्लाह बड़ा एक ज़बरदस्त जो है ट्रेनिंग का एक सिस्टम है, और ये सिर्फ यहाँ फैज़ान मदीना कराची में नहीं है बल्कि पाकिस्तान भर में ये कोर्सेस हो रहे हैं। अल्लाह ने करम ऐसा किया तुझ पे जहाँ में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी आप यहाँ पर कहाँ से आए और ये क्या हो रहा है थोड़ा बताएं। मदीना तुलौलिया मुल्तान शरीफ से 1 माह के इतिकाफ़ के इस्लामियों को यहाँ पे इतिकाफ़ कराने की नीयत से हाज़िर हुए, तो इस टाइम इनके कार्ड बनाए जा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज़ है और किसी किस्म की यहाँ टेंशन नहीं। ऐसा बेहतरीन सिस्टम इस दफ़ा जो माशाल्लाह सिस्टम यहाँ पे देखने को आ रहा है यूनिक है, और मैं समझता हूँ कि ऐसा मुनज़्ज़म अंदाज़, इतने बड़े इतिकाफ़ को संभालना, मैं अमील सुन्नत की अज़मत को सलाम करता हूँ, और तमाम ज़िम्मेदारान जो माशाल्लाह बहुत दिल खुश हो गया जी। माशाल्लाह दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। फिर आप 12 माह की नियत कर लें इंशाअल्लाह, 12 माह इंशाअल्लाह। लब्बैक। एतकाफ़ मजलिस का जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, एतकाफ़ मजलिस की पूरी एक मजलिस बनी हुई है, डिपार्टमेंट बना हुआ है, उसके ये रुकन है। आप जो सराइकी मुसलमान हैं दुनिया में, उनको सराइकी में कोई पैगाम दें यहाँ आने के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 1 महीने का पूरा एतकाफ़ थींदे है। काफ़ी सारे से भी आते हैं, मुख्तलिफ शोबा जात दे मुख्तलिफ इलाकों के आते हैं, जेड़े नमाज दे अपने पहले ना पढ़ते हैं, आलमी मदीना मरकज़ विच आते हैं, एतकाफ़ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी बन वेंदे हैं, तहज्जुद गुजार बन वेंदे हैं। काफ़ी सारा इल्म सीखने का मौका मिलता है उन्होंने, वज़ू का तरीका आ वेंदा है, नमाज दुरुस्त करना तरीका आ वेंदा है, नमाज सही पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जे वेले आते हैं सीखते हैं, कुरान पाक भी दुरुस्त पढ़न का उन्होंने काफ़ी हद तक तरीका आ वेंदा, क्योंकि मदनी कायदा अल्हम्दुलिल्लाह मखारज दे नाल पढ़ाया वेंदा है।
ہی تو بعد دعائیں بھی یاد کروائیں میں ہیں. میں سارے مدنی چینل جڑے رہتے پے ہیں سارا دی خدمت وچ میں گزارش کرے نہ کہ تساں بھی ایک مہینے واسطے عالمی مدنی مرکز دے وچ آو. آخری شے اعتکاف بھی ہوندے ایتھے آو اعتکاف کرو. کافی سارے فوائد مل سن. نماز دی پابندی تھی ویسی تہجد گزار بن ویسو انشاءاللہ الکریم. نہ اپنی نماز درست تھی ویسی نماز جنازہ دا طریقہ وضو طریقہ سارے چیزاں آپ کو سکھانے واسطے مل ویسے. جڑے کراچی دے وچ نہیں آ سکدے ایویں بہاولپور دے وچ فیضان مدینہ دے وچ بھی ایک مہینے دا اعتکاف پورا تھیندا پیا ہے. ملتان شریف دے وچ بھی پورے ایک مہینے دا اعتکاف تھیندا پیا ہے. رحیم یار خان دے وچ بھی پورے ایک مہینے دا اعتکاف تھیندا پیا ہے. جڑے قریب جڑے علاقے دے وچ اپنے ایک مہینے دا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں اپنے علاقے دے اعتکاف دے وچ اپنے جو شہر میں دسے ہیں انہاں شہراں دے وچ وانتے بھی ایک مہینے دا اعتکاف کر سکتے ہیں. اپنے ہر شہر دے وچ الحمدللہ آخری ڈا دہاڑا دا اعتکاف تھی سی سنت اعتکاف اون دے وچ بھی آپ دعوت اسلامی دے جتھے زیر اہتمام آخری ڈا دہاڑا دا اعتکاف تھیندا پیا ہو سی اون دے وچ بھی تساں شرکت کرے سو اعتکاف دے وچ انشاءاللہ الکریم ان دے وچ بھی کافی ساری چیزاں سکھان کو آپ کو موقع مل سی انشاءاللہ. اچھا ایویں ہی عید تو بعد یعنی عید والی دہاڑ تے مختلف کورس شروع تھی وینے. 63 دہاڑاں دا مدنی تربیتی کورس ہوندا ہے. اون دے وچ بھی الحمدللہ نماز وضو غسل دے مسائل سکھائے ویندے ہیں. عید دے بعد فوراً اپنے مختلف کورس دے وچ داخلے شروع تھی سن. اپنے کورس دے وچ فیضان نماز کورس 7 دہاڑاں دا ہوندا ہے. اپنے علاقے دے وچ بھی تساں اے 7 دہاڑاں دا فیضان نماز کورس 63 دہاڑاں دا مدنی تربیتی کورس کرتے اپنے دلاں دے وچ علم دین سکھان دا فائدہ کرو. الحمدللہ اس وقت انٹرنیشنل مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رسول کے الحمدللہ حلقے سج چکے ہیں. علم دین سکھایا جا رہا ہے. فرض علوم سکھایا جا رہا ہے. الحمدللہ برکتوں والا مہینہ, عظمتوں والا مہینہ, نعمتوں والا مہینہ, رحمتوں والا مہینہ رمضان کا مہینہ جاری و ساری ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے رمضان کا جس میں روزہ دار کے کھانے اور پینے کا حساب نہیں ہوتا. اگر رمضان کے مہینے میں کوئی فوت ہو جائے, کسی کو موت آ جائے تو اسے عذاب قبر نہیں ہوتا. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی راتوں میں بندہ رب کو اگر ایک سجدہ کرے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے رمضان جس کی راتوں میں ایک منادی جو ہے وہ ندا کرتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار جسے بخشا جائے, ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کی مغفرت کی جائے, ہے کوئی رب سے سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے. گویا رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں نیکیوں کا میٹر بڑی سپیڈ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. الحمدللہ اس وقت اعتکاف کے اندر جو ہیں عاشقان رسول جو ہیں وہ تراویح پڑھ رہے ہیں, 5 نمازیں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں, اشراق و چاش ادا کر رہے ہیں, تہجد ادا کر رہے ہیں, صلاۃ و تسبیح ادا کر رہے ہیں, اوابین کے نوافل ادا کر رہے ہیں, صلاۃ و توبہ ادا کر رہے ہیں. یہ پورا مقدس مہینہ پورا کا پورا ماہ رمضان الحمدللہ معتکفین جو ہیں وہ عبادت الہی میں گزار رہے ہیں. آئیے آپ کو ہم حلقوں کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس وقت ہم حلقے میں موجود ہیں اور حلقے کو انہوں نے بھاری کر دیا ہے. اس لیے کر دیا ہے کہ مسواک کی بہاریں آ چکی ہیں. یاد رکھیں مسواک کرنا سنت مبارکہ ہے. جو مسواک کثرت سے کرتا ہے اس کی یادداشت تیز ہوتی ہے, سینہ واش ہوتا ہے, معدہ صاف ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ جو مسواک کا عادی ہوگا اسے مرتے وقت جو ہے وہ کلمہ نصیب ہوگا. مسواک کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے, اہل بیت کا طریقہ کار رہا ہے. تو مسواک کریں, اپنے منہ کی بدبو کو دور کریں. مسجد میں جب بھی آئیں تو منہ میں اسمیل نہیں ہونی چاہیے, آنا ورنہ جائز نہیں ہوگا. بدبو منہ میں ہو تو مسجد کا داخلہ بھی جائز نہیں ہے. لہذا صفائی کا خیال رکھیں اور مسواک کا استعمال کریں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں ان سب نے لی یہ مسواک. مسواک کرنا نبیوں کا طریقہ رہا, تو سنت کی نیت سے مسواک ہمیں کرنا چاہیے. اور امیر اہل سنت نے الحمدللہ اس کی بھرپور ترغیب دلائی. معتکفین کو ارادے کروائیں کہ منہ کی بدبو کا خیال رکھیں. اور یہاں پر یہ نعرہ بھی یہ سارے میرے ساتھ مل کے لگائیں گے کہ فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا. انشاءاللہ فیضان مسواک جاری رہے گا. انشاءاللہ عز و جل کرم ہوتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.